my dear friends, all of you are most welcome in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, as due to COVID-19, we are suffering a lot. So, my dear friends, today I, Electron Mishra, going to arrange the class for those friends who will appear in next year board examination. So, my dear friends, every day just I am providing you classes. Today in chemistry second chapter 14th board examination, acid bases, the last topic I am going to discuss, that is washing soda, baking soda, bleaching powder and plaster of Paris. So my dear friends, now you are attending the class regularly and you are getting more and more benefit. So without passing the time, just I would like to start the class. Now acids, bases and salt. Acid, base and salt. In this chapter, we are going to discuss today washing soda, washing soda. Washing soda. My dear friends, the washing soda, the formula of washing soda is Na2CO3 into 10H2O. H2O, it means if water contains in compound, then it is called hydrated. Hydrated. And when water molecules containing compound, when it is heated, then water molecules removes and it gives the dry form, that is called unhydrated. तो हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो उस कंपाउंड को हम हाइड्रेटेड बोलते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल्स है तो मोनोहाइड्रेटेड होगा, टू है तो डाईहाइड्रेटेड और दो से ज्यादा हो तो उसको हम पॉलीहाइड्रेटेड बोल सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द नंबर वी कैन से नाउ हियर 10 molecules of water, 10 molecules of water is present in sodium carbonate, so it is known as sodium carbonate decahydrated. इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड। क्योंकि हाइड्रेटेड का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जब सॉल्ट पे प्रेजेंट होगा तो उसको हम हाइड्रेटेड बोलेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जब हीट करने पर आउट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अनहाइड्रेटेड। तो वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है, जनरल नेम यू कैन से, एंड इन केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट decahydrated. My dear friends, how it is formed? Preparation. तो इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? तो now we will
discuss about the preparation of washing soda. Preparation of washing soda. Washing soda को हम prepared कैसे करेंगे? So first of all, there are two processes so that we can prepare. As the industrial way, industrial process, it means in large way we can prepare, and second is laboratory method. Now, solvent process, we can prepare the washing soda with solvent process. Solvent process. First क्या आपका solvent process. solvent process क्या होता है? तो solvent process उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड, इट मींस ब्राइन, सोडियम क्लोराइड के जब अमोनिया से कॉन्सेंट्रेटेड करके जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया जाता है तो ये मेरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है। नाउ what is the solvent process? Solvent process is that process where the sodium chloride is concentrated. Sodium chloride is concentrated with ammonia and carbon dioxide is passed in that solution, concentrated solution. Then sodium carbonate is formed. And this process is known as solvent process. My dear students, आपको मैंने जो बोला, this is the solvent process. You can pause the uploaded video and just you can write. Actually, just I am going to direct on chemical reactions. Now, my dear students, washing soda में क्या करेंगे? अमोनिया, अमोनिया गैस होता है NH3. Now NH3 में हमने क्या करेगा, इसमें वाटर मिला दे और कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अमोनिया वाटर मिला है, इसको अमोनिकल वाटर बन गया. नाउ जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करा मैंने तो ये बन जाएगा आपका Na4CO3 अमोनियम कार्बोनेट NH4HCO3 का फॉर्मेशन करेगा. NH4HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है. हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब ये अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन में ये हमने क्या किया कि अमोनिया वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए. अब नाउ अकॉर्डिंग टू द solvent process NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लिए, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम. किससे करेंगे? तो अमोनिकल वाटर से करेंगे और उसमें क्या पास कराना है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ओवरऑल जस्ट वी कैन मिक्स these compounds. It means plus NH4HCO3. इसको मैंने क्या किया? मिक्स किया. तो NaCl की एक्वा सॉल्यूशन में जब हमने अमोनिकल वाटर से में कार्बन डाइऑक्साइड और इसके सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो ये फॉर्म करता है दैट इज NaHCO3 plus NH4Cl. NaHCO3 plus NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. किसको बनाएगा? अमोनियम हाइड्रो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया. सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकाल दिया। नाउ इन दिस वे, सबसे पहले वी आर यूजिंग सॉल्वेंट प्रोसेस। तो सॉल्वेंट प्रोसेस में क्या किया मैंने, अमोनिकल वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो ये क्या बना दिया, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम क्या लिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स करेंगे इसको हम, तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप, this is the third step. Now in fourth step, my dear students, क्या करूंगा, तो in fourth step just इस अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम ड्राई कर देते हैं। क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। सुखा देने पर ये क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम सुखाएंगे या गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है Na2CO3। नाउ जस्ट NaHCO3 फोर्थ स्टेप में याद रखिएगा, NaHCO3 को मैंने ले लिया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या किए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहां से क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा एंड जस्ट इट विल फॉर्म द Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। एंड नाउ सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, CO2 प्लस H2O। नाउ इट विल बी सेपरेटेड बाय द डिफरेंट प्रोसेस। नाउ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया, CO2 प्लस H2O निकाल दो। नाउ Na2CO3 फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाउ दिस इज द फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे कि Na2CO3 को हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, CRYSTALLIZATION, क्रिस्टलाइजेशन। जब इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो ये बन जाता है Na2CO3 into 10 molecular 2CO3 into 10 H2O. It means this is the washing soda. इसको हम क्या बोलेंगे, washing soda। आप यहां पर 10 molecules ऐड कर देते हैं, 10 molecules of water। तो this is the preparation of washing soda। This is the preparation of washing soda. So there are different steps and we have to follow it. So my dear students, सबसे पहले हमने क्या किया, अमोनिकल वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, बना दिया अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेकंड स्टेप में सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इसको हम पास कराए तो बना दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया मैंने NaHCO3 को 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के तो बना दिया Na2CO3। और जब उसको क्रिस्टलाइजेशन किया मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेकर के तो क्या बना दिया, वॉशिंग सोडा। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ washing soda. Now my dear friends, in this process carbon dioxide and ammonia is used as a raw material.
रॉ मटेरियल के रूप में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया यूज होता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सोडा सोडा अमोनिया प्रोसेस। इसको हम दूसरे नाम से बोलेंगे, अमोनिया सोडा और वाटर का यूज करते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। Now you can write there washing soda. It is also known as ammonia soda process. Soda process. It is also known as ammonia soda process. Why? Because in this process ammonia plus soda water CO2 सोडा वाटर एक्वस अमोनिया प्लस सोडा वाटर इज यूज्ड। अमोनिया प्लस सोडा वाटर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल के फॉर्म में इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? अमोनिया और सोडा वाटर का यूज किया जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अमोनिया सोडा वाटर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। Now my dear friends, properties of washing soda. What is the property of washing soda? Now it is a white crystalline solid first क्या हो गया? It is white crystalline solid। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा हम लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज वाटर सोलेबल। ये जल में क्या होता है? डिसॉल्व कर जाता है। सो इट इज कॉल्ड आल्सो वाटर सोलेबल। और नाउ इट्स aqueous solution is इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय घोल जो होता है, नाउ बेसिक होता है। Why its aqueous solution is basic? Why its aqueous solution is basic? There are some norms, there are some cases to show it basic in nature। तो पहला क्या होता है? ए में ये बेसिक नेचर शो करने का इसका रीजन ये होता है कि इट इज Na2CO3 को Na2CO3 इसमें वाटर जब हम डिसॉल्व करेंगे, नाउ इट विल फॉर्म द NaCl plus CO2। ये क्या देगा?
Na2CO3 plus H2O, NaOH plus NaOH plus NaHCO3, NaHCO3। ये क्या होता है मेरा? दिस इज द बेस, ये बेस है। इसीलिए सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए बेस, कास्टिक सोडा दैट इज ए बेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा इट्स नेचर इज बेसिक। सेकेंड है आपका Na2CO3, Na2CO3 प्लस एसिड के साथ जब रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। So it also shows the basic in nature. Na2CO3, it reacts with acid, HCl, acid के साथ करेगा। Now it will form the carbon dioxide. क्या देगा आपका? तो CO2, देखिए यहाँ NaCl का फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट बना दिया, प्लस CO2 प्लस H2O। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट शोज द बेसिक इन नेचर। और तीसरा केस हम बोलते हैं कि ये जो होता है Na2CO3 को 10 पीपल्स ऑफ वाटर से करेंगे तो वो वाशिंग सोडा बना देता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2 के साथ ये रिएक्शन करेगा। Now it will give the 2NaHCO3 का फॉर्मेशन करता है। Now Na2CO3 plus H2O plus CO2 plus H2O plus CO2. Now it will form the 2NaHCO3, sodium bicarbonate का फॉर्मेशन करेगा। So in this way we can say this is basic in nature. Now we will discuss about the use. यूज क्या है इसका वाशिंग सोडा का? तो वाशिंग सोडा का यूज देखेंगे हम लोग। यूज सोप बनाने में यूज करेंगे, वॉशिंग द क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ, कपड़ा धोने में इसका काम करेंगे। रीएजेंट के रूप में काम इसका होता है। इट इज ऑल्सो यूज, इट इज यूज एज रीएजेंट, रीएजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं लोग। और यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, ग्लास, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। It is also used in NaOH is used for making the borax, for making the borax, बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं। तो दिस इज द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। माय डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। तो हाउ बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। My dear friends, I understand you are learning very well, and just you are understanding. If you face any problem, immediate you can ask by Facebook, Instagram, or by mail, and
Just you put down in comment box also. Now next is baking soda. So please come on and attend the class of baking soda. Now baking soda. Baking soda. Baking soda. Now, my dear friends, again you are most welcome in the next topic, baking soda. Baking soda, it means NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. This is the chemical name, sodium hydrogen carbonate, or common name, that is baking soda. Now we will discuss about the preparation, property and usage of baking soda. Preparation. What is the preparation of baking soda? My dear friends, baking soda, it is prepared in the same way, sodium carbonate, in large scale or a laboratory method. Just we have discussed in Solvay process. The same way, according to the Solvay process, that is known as Solvay process production method, you can say that production method. Now according to the production method, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में जब उसको अमोनिया से कॉन्सेंट्रेट करके कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया था उसे, तो क्या बनता है मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. नाउ इन दिस प्रोसेस द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, it is concentrated by the ammonia, and when we pass the carbon dioxide from this solution, the ammonia hydrogen carbonate is formed. Now NaCl H2O, this is the NaCl aqueous form plus H2O. It means NaCl अगर aqueous लिया तो उसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ, तो यहाँ पर आप aqueous नहीं लिख सकते हैं, तो वाटर कम कर दिया, प्लस अमोनिया लेंगे, इससे ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, और नाउ वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम पास कराए तो ये क्या बन गया आपका NaHCO3 प्रिसिपिटेट हो जाएगा, NaHCO3, that is precipitated. So how can you write it? The ammonium aqueous solution of ammonium chloride, it is concentrated by the ammonia, and now when carbon dioxide is passed over the solution, now it will rearrange all together and form a sodium hydrogen carbonate, that is known as baking soda. इसी का नाम हम बोलते हैं baking soda. This is known as baking soda. Second preparation है, this is the first preparation. Now it is production method, उत्पादन विधि बोल सकते हैं हम लोग. And now second, lab process, lab method. How can prepare in the laboratory? तो laboratory में prepare करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे उसमें, तब वो इसमें टूट जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टूट जाएगा. नाउ इन द लैबोरेटरी व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट we pass the carbon dioxide, it will be form the sodium hydrogen
carbonate Na2CO3, Na2CO3 इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वाटर मिलाना इसमें. नाउ वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ इट विल फॉर्म द two molecules of NaHCO3, that is baking soda. Baking soda. This is the process to find out to prepare the baking soda. My dear friends, I think you are understanding very well. And my dear friends, one thing is more that you have to practice. You have to do practice. And if you do practice, then after you can understand and you can write and you can make the equations. So this is the lab method for making the baking soda. Now next, my dear students, we will discuss about the property of baking soda. Properties of baking soda. Property of baking soda. What is the property of baking soda? तो baking soda क्या होता है? It is a white crystalline solid, also water soluble. First, it is white crystalline solid. It is white crystalline solid. Second, it is also water soluble. It is soluble in water. It is soluble in water. Now, third, when sodium hydrocarbonate is heated, then it will convert into the sodium carbonate. Now, after heating the sodium hydrogen carbonate, it will convert into the sodium carbonate. Fourth, 2NaHCO3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम ले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करेंगे ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करेगा. नाउ सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइज्ड 10 molecules of water, it will form the washing soda. Now this you can say this is the vice versa. Now with the इसको हम इधर से इधर तोड़ेंगे, इधर से ये इधर टूट जाएगा. NaHCO3 एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आपका अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O. Now NaHCO3 sodium carbonate, when it reacts with sodium carbonate by hydrogen carbonate को एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे. Now you can write the reaction with acid. Reaction with acid. तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, उसको क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या यू कैन से broken down होता है when we go through the heating process. सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज एसिड, और ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नाउ इट विल फॉर्म द सोडियम क्लोराइड, वाटर, NaCl बन जाएगा आपका, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा. दिस इज द chemical reaction when it reacts with acid. So these are the property of baking soda. Now my dear students,
It is also form the tartaric acid, NaHCO3 टार्टेरिक एसिड के साथ करेगा तो ये सोडियम टार्ट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लिया तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, टार्टेरिक एसिड के साथ है तो सोडियम टार्ट्रेट का फॉर्मेशन कर देता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा? एक्चुअली बेकिंग सोडा में अभी क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। When we heat it, it release कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो क्या होता है, स्पॉन्जी बना देता है। तो इसीलिए जब किसी भी चीज को स्पॉन्जी ब्रेड को बनाना होता है तो उसमें क्या डाल देते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा बनाते हैं। क्रिस्पी बनाने के लिए, कुरकुरा बनाने के लिए, किसी भी फ्राइड चीज में कुरकुराहट आए उसके लिए भी हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर डालते हैं उसमें कुरकुराहट आने के लिए। स्पॉन्जी बनाने के लिए, स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, एक्चुअली बिकॉज इट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी स्पॉन्जी। इट इज ऑल्सो यूज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने में भी इसका काम करते हैं। तो आग बुझाने में क्यों काम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सपोर्ट फॉर बर्निंग द फायर। फायर को बर्न करने में वो रोकता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट को वो डिस्कनेक्ट करता है, इसलिए इसका यूज हम कहां करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। तो नाउ यू कैन राइट हियर, इट इज यूज्ड इन द किचन, इट इज यूज्ड इन द किचन for making crispy items, crispy items। It is used for making a spongy, it is used as fire extinguisher, in the kitchen। किचन में फायर एक्सटिंग्विशर का भी इसका यूज करेंगे हम लोग। नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ एंड लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं हम लोग। एंटासिड इज यूज्ड, एंटासिड के रूप में यूज करते हैं। तो व्हाट इज द एंटासिड? एसिडिटी होती है और उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन बना करके यूज करते हैं या घोल करके उसको पी जाते हैं तो हमारी एसिडिटी होता है, एसिडिटी होता है न्यूट्रलाइज होता है, वी फील रिलैक्स ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। So these are the uses and so many more uses of the baking soda. Now my dear friends, next we will discuss about the bleaching powder. Bleaching powder. Now I think you are understanding very well. And today's baking soda and washing soda. Now rest of the common salt, that is bleaching powder and plaster of Paris. Now come on and I will discuss
bleaching powder